Welcome dear at Meenakshi YouTuber channel. You might be laughing at these pictures now. What are you thinking now? What a creativity in the minds of Indians. Actually, creativity is nothing. Creativity is a word that revolves around us again and again. So let's start our topic with the help of notes. You can see on the notes, ईश्वर ने हम सभी को और हमारी प्रकृति को, सभी वस्तुओं को बनाया है. हम सब उसी की सृष्टि हैं. हम में से प्रत्येक व्यक्ति अनुपम है, इसीलिए सभी प्राणियों में एक ही स्तर की सृजनात्मक योग्यता विद्यमान नहीं होती. हम में से सभी व्यक्तियों में उच्च स्तरीय सृजनात्मक प्रतिभाएं होती हैं और यही व्यक्ति की कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षण आदि सभी मानवीय क्षेत्रों में संसार का नेतृत्व करते हैं. Next, we want to discuss about the concept of creativity. Actually, creativity is a concept, imagination or illustrations. Let's start the definition of creativity. According to स्टैगनर, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन ही सृजनात्मकता है. आप बाकी सभी डिटेल्स के लिए यू कैन सी एट द नोट्स. Basically, after reading the notes, you can assume or you can understand the concept of creativity. Actually, creativity is the ability to make or produce new things using skills or imaginations. Creativity is characterized by the ability to perceive the world in the new ways, to find hidden patterns, to make connections between seemingly unreal phenomena and to generate solution. On other side, you can see on the notes, सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है. सृजनात्मक योग्यताएं प्रकृति प्रदत्त होती है, परंतु प्रशिक्षण से उनको विकसित किया जा सकता है. सृजनात्मकता अभिव्यक्ति द्वारा किसी नई वस्तु से उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु पूर्ण रूप से नई हो. कोई भी सृजनात्मकता अभिव्यक्ति सृजक के लिए आनंद तथा संतुष्टि का स्रोत होती है. सृजक व्यक्ति अर्थात क्रिएटिव जो इंडिविजुअल है, जो अपने अहम को इस प्रकार कर सकता है कि यह मेरी रचना है, यह मेरा विचार है और मैंने समस्या को हल किया है. अतः निर्माणात्मक क्रियाओं में उसका अहम निहित रहता है. और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है. उसमें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो रिसर्चर हैं वो रिसर्च करते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानीकार कहानी लिखते हैं, नाटककार नाटक लिखते हैं, बहुत सारी चीजें, नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं, चित्रकारी की जाती है, राजनीतिक क्षेत्र में इसका संबंधित है. इसके अलावा हमारी दैनिक क्रियाओं में भी सृजनात्मकता की बेहद आवश्यकता होती है. Our next part is process of creativity. The creative process can be divided into 4 stages. First stage is preparation, second stage is incubation, and third stage is illumination, and fourth stage is variations. In the first stage, your brain is gathering information. After all, creative ideas don't come from a vacuum. In the second stage, you let your mind wander and stretch your ideas. कई बार हमारे मन में सवाल आ जाता है कि बुद्धि और सृजनात्मकता एक ही चीज है, लेकिन वास्तव में दोनों प्रक्रियाएं एक नहीं है, दोनों में एक बेसिक फर्क होता है. Actually, our thinking have 2 parts. First, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड सेकंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. आप यहाँ देख पा रहे हैं, बुद्धि का आधार है कन्वर्जेंट थिंकिंग और सृजनात्मकता का आधार है डाइवर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति जो है एक ही विचार को ढूंढने में सक्षम होता है, और जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे विचार उसके माइंड में आ जाते हैं. Our next question is that how can we identify these children? Actually, it is not a difficult task. These children are who around us similarly.
Some symptoms are found in these type of children's, like strong memory, interest in art and painting, more curious to learn, good reasoning ability, ability to learn fast, self-discipline. There are some psychological tests, which we will discuss here. You can see on the notes some standardized tests for abroad and some standardized tests from India. Almost these standardized tests are categorized into two parts. First, non-verbal test and second, verbal test. You can see on the notes these categories. Our next concept is how can we develop of creativity among children. प्यारे बच्चों, एक्चुअली हर बच्चा क्रिएटिव होता है, जरूरत होती है उसे पहचानने की। कोई भी बच्चा बचपन में जब कोई भी एक्टिविटी करता है तो हम उसे प्रोत्साहित नहीं करते, उसे डांट देते हैं। कोई भी बच्चा खिलौना लेकर आएगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर उसे तोड़ेगा, फिर उसे जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इन सभी सवालों के पीछे उसकी तो क्रिएटिविटी छुपी होती है, लेकिन हमारा छुपा होता है गुस्सा। हम उसे डांट देते हैं और इसी वजह से उसकी जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग है, वो वहीं पर दब जाती है। हर एक बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है और उसी प्रतिभा का एग्जाम्पल आपने 3 इडियट मूवी जरूर देखी होगी। उसमें एक डायलॉग है, अगर सचिन तेंदुलकर को गाना गाने के लिए कहा जाता और लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने के लिए कहा जाता तो शायद दोनों की ही प्रतिभा खत्म हो जाती। एक्चुअली प्रतिभा, सृजनात्मकता हर व्यक्ति के अंदर होती है। उस सृजनात्मकता को हम अलग अलग रूपों में इस्तेमाल करते हैं। हमें जरूरत होती है एज ए टीचर उस क्रिएटिविटी को पहचानने की। तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? आप नोट्स में देख सकते हैं कि अगर हम बच्चे को उत्तर देने की स्वतंत्रता दें, फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, अगर हम उसको उसके अहम को, उसके भावों को प्रकट करने की, अभिव्यक्ति करने की अवसर दें, उसके अंदर जो मौलिकता है, लचीलापन है, उसको प्रोत्साहित करें, उसके डर को दूर करें और बच्चों के अंदर स्वस्थ आदतों का निर्माण करें, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें, समुदाय के लिए वो सृजनात्मक साधनों का प्रयोग करना सीखें, जिसकी वजह से अपना उदाहरण और आदर्श प्रस्तुत कर सकें। पाठ्यक्रम में हमारे अच्छी और उन चीजों का समावेश हो जो बच्चे की क्रिएटिविटी को डेवलप करने में मदद करें। इसके लिए हमें बकायदा विशेष जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल है, उसका इस्तेमाल करना उन्हें सिखाएं। इसके अलावा बहुत सारी और, अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं या टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है, टीचिंग मॉड्यूल्स हैं, इसके अलावा खेल तकनीक हैं। इस तरीके से हम बच्चे की प्रतिभा को और विकसित कर सकते हैं। और जब बच्चे की प्रतिभा विकसित हो जाएगी तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कैसे हमारे समाज को वो एक नई दिशा और दशा प्रदान करेगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग है तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर देख सकते हैं, और या फिर अपने कमेंट में हमारा जो भी प्रश्न आपका है उस प्रश्न का आप ब्यौरा डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू डियर।